Hello students, this is the fourth video of lesson number 15. In this video we are going to learn how to find the area of a triangle. Okay, you may think that now we have learned it in standard 7. We know how to find out the area of triangle. Formula also we know area of triangle is equal to 1 upon 2 multiplied by base multiplied by height. Or we say 1 upon 2 into base into height. Okay, but this is for a right angle triangle. 1/2 into base into height, it is for right angle triangle, or even not only right angle triangle, even for other triangles whose base and height is given. But in this video we are going to learn how to find area of a triangle when the length of base and height is not given and only the length of the three sides of a triangle is given. Then in that case, how to find out the area of a triangle, that we are going to learn in this video. Okay, means you must know the difference, exactly what we are going to learn. Now we will see how to find the area of a triangle if height is not given but length of the three sides of a triangle are given. Now observe the triangle ABC. Okay, length of AB is given C, length of BC is given A, and length of AC is given small b. Okay, then let ABC are the lengths of the sides BC, AC and AB respectively of triangle ABC. Then let us find the semi-perimeter. What is the meaning of semi-perimeter? Now we know the meaning of perimeter. Perimeter means sum of the lengths of all three sides of a triangle. Okay, that is called perimeter. Semi-perimeter का मतलब perimeter का आधा part, यानी divided by 2. That is called semi-perimeter. So semi-perimeter is equal to S. S is it is denoted with S is equal to 1 upon 2 in bracket A plus B plus C. Means what? Length of the side 1 plus length of side 2 plus length of side 3. तीनों साइड की लेंथ का एडिशन और उसको 2 से डिवाइड करना है, नहीं तो उसका हाफ पार्ट. ओके, यानी आधा पेरीमीटर. ओके, दैट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर. राइट, सेमी पेरीमीटर we have to find out, and then you have to use this value of semi perimeter in this formula. What is the formula? Area of a triangle is equal to under root. रूट में डालना है कौन सा? स्क्वेयर रूट. ओके, s in bracket s minus a bracket complete, second bracket में s minus b and third bracket में s minus c. Means what is the meaning of this? स्क्वेयर रूट के अंदर पहला सेमी पेरीमीटर लेना है, उसके बाद पहले ब्रैकेट में क्या? सेमी पेरीमीटर माइनस लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, दूसरे ब्रैकेट में सेमी पेरीमीटर माइनस लेंथ ऑफ सेकंड साइड, तीसरे ब्रैकेट में सेमी पेरीमीटर माइनस लेंथ ऑफ थर्ड साइड. ओके, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स इज गिवन. ओके, एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज Heron's formula. The name of the formula is Heron's formula. Okay, let us move ahead now. Then on next page, solid examples are given on page number 100. Solid examples are given. Solid example number 1, number 2 downside, number 2 are there. From that first example, just we will discuss here. What is the example? If the sides of a triangle, sides यानी लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, तीनों साइड की लेंथ दी है. देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करो. तो व्हाट आर द गिवन थिंग्स? ए इज इक्वल टू 17, बी इज इक्वल टू 25, सी इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर में. दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट. ओके, तो पहले क्या करना है? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर मीन्स यस वी हैव टू फाइंड आउट. क्या करना है? तीनों साइड का एडिशन डिवाइडेड बाय 2. तीनों साइड का एडिशन डिवाइडेड बाय 2. तीनों साइड का एडिशन का आंसर आता है 62 डिवाइडेड बाय 2, उसका आंसर आता है 34. व्हाट इज दिस 34? 34 इज नथिंग बट द सेमी पेरीमीटर. ओके, अब हम लोगों को सेमी पेरीमीटर मिल गया. ओके, वंस अगेन आई रिपीट, सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या है? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, उसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर. ओके, now use that value in the formula of area of triangle is equal to, यानी कौन सा फॉर्मूला? ये Heron's formula. Okay, then put these values in Heron's formula. Under root. Okay, स्क्वायर रूट के अंदर
सेमी पेरीमीटर, यहां पर ब्रैकेट उल्टे हो गए, ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक, ओके, यहां पर ब्रैकेट ऐसा चाहिए, यहां पर ऐसा चाहिए, यहां पर ऐसा चाहिए, यहां पर ऐसा चाहिए, बाकी बराबर, ठीक है, प्रिंटिंग में होती है मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। तो सेमी पेरीमीटर, ओके, तो और पहले ब्रैकेट में क्या है, सेमी पेरीमीटर माइनस लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, देन दूसरे ब्रैकेट में सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड, उसके बाद सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड, और उनका मल्टीप्लीकेशन है तीनों का भी, ओके। सो देयरफॉर द सेम वैल्यू इज पुट 34 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर भी उल्टा हो गया, ओके, 34 in first bracket 34 minus 17. What is this 17? Length of first side. Then second bracket 34 minus 25. 25 यानी length of second side. Then 34 minus 26. 26 means length of third side. Okay. अब ये solve the bracket. स्क्वायर रूट के अंदर 34 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर कुछ साइन नहीं है, उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। 34 minus 17 17. 34 minus 25 9. 34 minus 26 8, और तीनों का मल्टीप्लीकेशन है, राइट, ओके। नाउ वी हैव टू फैक्टराइज ऑल दीज नंबर्स सच ए वे दैट वी विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ इट, ओके। तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करते हैं हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में हमने एक सिंपल मेथड पढ़ी थी, ओके। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, कौन सा भी नंबर ले लो, ओके, उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करो, ओके। समझो 625, उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करो, ओके, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स, लिखो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये किसके फैक्टर्स है, 625, ओके। अब इसका स्क्वायर रूट चाहिए, स्क्वायर रूट क्या चाहिए, मतलब क्या है, इसके दो ग्रुप बनाओ, इक्वल ग्रुप्स, और दोनों में से एक ग्रुप यानी आधे इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 25 इज द square root of 625. Okay, this method we have learned in standard 6. Okay, this is the simplest method, factorization, prime factorization method for finding the square root. Okay, that method you have to implement here. Okay, अब देखो इन्होंने क्या किया है, 17, यहां पर 17 है तो उसके लिए और एक 17 चाहिए, तो 34 को कैसे लिखा, 17 मल्टीप्लाइड बाय 2, 34, ये 17 एज इट इज हियर। 9 को लिखा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 8 को लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि यहां पर एक 2 है, ओके। तो ऐसा ग्रुप बनना चाहिए। अब देखो 17 मल्टीप्लाइड बाय 17, हियर इट इज रिटन 17 स्क्वायर, देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट इज रिटन 2 स्क्वायर, देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट इज रिटन 3 स्क्वायर, एंड दिस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट इज रिटन 2 स्क्वायर, ओके। तो सारे नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या है, 17 मल्टीप्लाइड बाय 17। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो इसमें से एक एक ही लेना है व्हेन वी वांट द वैल्यू ऑफ दिस। ये स्क्वायर रूट का साइन अगर निकालना है तो 17 स्क्वायर का क्या लेना है, सिर्फ 17, यानी एक एक नंबर कट होता है। जहां पर हमने देखो यहां पर 2 ग्रुप बनाए थे, उसमें से एक ग्रुप लिया, वैसे ही यहां पर दोनों में से एक लेना है, तो यहां से 17 लिया, यहां से 2, यहां से 2 लिया, यहां से 3 लिया, ओके। तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ओके, आंसर मिलता है 204, एंड आंसर मिलेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC? इट इज नथिंग बट 204 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला कब इंप्लीमेंट होता है, when the length of the 3 sides of a triangle are given, okay. After that then second short example is given, okay. आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है, okay, तो go through the text book, right. Now I will move to next page. On next page in upside, now I know, okay, this topic is given, okay. तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, okay. पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स, दिस वी हैव लर्न सेकेंड वीडियो में, दिस वी हैव लर्न इन फर्स्ट वीडियो, दिस सेकेंड वीडियो। देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दिस इन थर्ड वीडियो वी हैव लर्न,
Okay, and in this fourth video, what we have learned up till now. If sides of triangle ABC are ABC, then Heron's formula, and this Heron's formula is area of triangle ABC is equal to तो अंडर रूट में सेमी पेरीमीटर, पहले ब्रैकेट में सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड, देन सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड. ओके, वेयर एस इज नथिंग बट द सेमी पेरीमीटर. और कैसे फाइंड आउट करना है? तीनों साइड की लेंथ की एडिशन डिवाइडेड बाय 2. ओके, दिस अप टिल नाउ इन दिस लेसन वी हैव लर्न ऑल दीज 4 थिंग्स. ओके, रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ये पूरा अब तक हमने जो पढ़ा है इस लेसन में, ओके, ये सारा ये 4 फॉर्मूले पर है. इफ यू रिमेंबर दिस 4 फॉर्मूलाज, वट एवर एग्जाम्पल्स विल बी आस्क्ड, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. ओके, using these 4 formulas. Now let us move to practice set number 15.4. In 15.4 practice set, total 3 examples are given. Okay, so let us solve them one by one. Example number 1, sides of a triangle are 45 centimeter, 39 centimeter and 49 centimeter. Then find its area. Okay, means here what we have to use? Which formula? Heron's formula we will have to use. Okay, let us calculate. Now what things are given? Length of sides are given. Sides of a triangle are given 45 centimeter, 39 centimeter and 42 centimeter. Right, this is the given information. Okay, means here we can write that here A is equal to 45 centimeter, then B is equal to 39 centimeter and C is equal to 42 centimeter. Alright, so therefore semi perimeter means S. Semi perimeter is equal to A plus B plus C upon 2. This is the formula to find out semi perimeter. Is equal to, what is the length of A? 45 plus 39 plus 42 upon 2. ओके, तीनों की अगर एडिशन करते हैं तो आंसर मिलता है 126 divided by 2 and answer is 63 centimeter. Right? Now here our value of semi perimeter is clear now. Okay, now we can use the formula. Area of triangle. Area of triangle, Heron's formula we have to use, is equal to under root semi perimeter, in first bracket semi perimeter minus A, in semi perimeter minus B, and then semi perimeter minus C. Right? Okay, is equal to under root, what is the value of semi perimeter? It is 63. Then in first bracket 63 minus length of first side, okay, which is 45. In second bracket semi perimeter minus length of second side, that is 39. Then in third bracket semi perimeter minus length of third side, it is 42. Right? Okay, is equal to under root 63 multiplied by 63 minus 45, answer is 18, multiplied by 63 minus 39, answer is 24, multiplied by 63 minus 42, answer is 21. Clear? Now these numbers we have to factorize, or we have to write such a way that we will get two numbers. Okay. Now this 63 we can write as 9 multiplied by 7. Okay. This 18 write as 9 multiplied by 2.
Then this 24 you can write as 8 multiplied by 3. And then 21 you can write 7 multiplied by 3. Right? Okay. तो is equal to अंडर रूट. अब इनका क्या करना है, ये दोनों जो 9 है, ओके, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 ये हो गए. देन 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 ये हो गए. देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. ओके, व्हाट इज रिमेनिंग देन? 2 and 8 is remaining. Okay, these 2 and 8, these take it as it is, because we know the square root of 16. Okay, नहीं तो ये 16 को 2 multiplied by 8 you can write as 4 multiplied by 4. This way also you can write. Okay, तो अब इनका स्क्वायर रूट चाहिए, तो दोनों में से सिर्फ एक एक ले लो. इज इक्वल टू 9, दोनों में से एक, मल्टीप्लाइड बाय दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, ओके, और इन दोनों में से एक. राइट? सो इज इक्वल टू, ये सबका एडिशन कर, 9 7 जा 63 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आंसर कितना मिलता है? 756 स्क्वायर सेंटीमीटर. Right? This is the area of triangle. So write the answer. Area of triangle is equal to 756 square centimeter. Alright? Now let us move to example number 2. Example number 2 is, look at the measures shown in the adjacent figure and find the area of quadrilateral PQRS. ये सब मेजर हमें देखने हैं. ओके, और हमें PQRS क्वाड्रिलेटरल PQRS उसका एरिया फाइंड आउट करना है, क्वाड्रिलेटरल का. ओके, सो हियर लेंथ ऑफ PS is given 36, 56, 25, here 15. Okay, length of diagonal PR is not given. Okay, this is a right angle triangle. Okay, तो ये राइट एंगल देखकर ही आपको पता चलना चाहिए कि दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस. ओके, एक बार इसकी लेंथ मिल गई तो ये हेरॉन्स फॉर्मूला से इसकी एरिया निकाल सकते हैं. ओके, दिस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल वी हैव टू फाइंड आउट बाय पाइथागोरस थ्योरम. ये हाइपोटेनस से मिलेगा. इसका एरिया कैसे मिलेगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया मिलेगा. सेकंड स्टेप में PR की लेंथ फाइंड आउट करनी है बाय थ्योरम ऑफ पाइथागोरस. ओके, और तीसरी स्टेप में क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, और इन दोनों का एरिया ऐड करके हमें मिलेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS. ओके, दिस वे डायग्राम इज शोन क्वाड्रिलेटरल PQRS. ओके, व्हाट थिंग्स आर गिवन? लेंथ ऑफ PS is given 36 meter. Then length of SR is equal to 15 meter. Then length of PQ is equal to 25 meter. Right? Then length of QR is equal to 56 meter. Okay, then therefore first you have to think of triangle PSR. Okay, इसके बारे में सोचना है. Okay, so therefore area of triangle PSR is equal to 1/2 into base into height. Okay, 1/2 into base, and because it is right angle triangle. Okay, so is equal to 1/2 into what is the base? 15 multiplied by what is the height? 36 is equal to 2 1 the 2, 2 18s are, so is equal to 15 multiplied by 18 is equal to 270 square meter. Okay, so what is the area of this? 270 square meter. Okay, we got the area of this. Now we have to find out the area of triangle PQR. लेकिन ये कौन सा रेगुलर ट्राइंगल भी नहीं है. ओके,
So for this purpose we need to find the length of PR. Okay. So let us find the length of PR by theorem of Pythagoras. So therefore in right angle triangle, PSR, ओके, सेम ट्राइंगल जिसका हमने एरिया फाइंड आउट किया है वो सेम ट्राइंगल, ओके, लेंथ ऑफ पी आर स्क्वेयर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी एस स्क्वेयर प्लस लेंथ ऑफ एस आर स्क्वेयर. ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी एस? इट इज गिवन 36 स्क्वेयर, ओके, एंड एस आर इज 15 मीन्स 15 स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 का स्क्वेयर है 1296 प्लस 15 का स्क्वेयर तो हमें मालूम ही है 225, दोनों की एडिशन आती है 1521. ओके, सो देयरफॉर ये क्या वैल्यू किसकी मिल गई? लेंथ ऑफ पी आर स्क्वेयर. ओके, सो देयरफॉर हमें लेंथ पी आर की लेंथ चाहिए, स्क्वेयर की वैल्यू नहीं चाहिए. सो अंडर रूट, ओके, एंड 1521 का स्क्वेयर रूट क्या है? 39 मीटर. ओके, सो वंस अगेन आई टेक यू टू द फिगर. सो दिस लेंथ पी आर वी गॉट 39 मीटर. Right? Now here we can use the Heron's formula. Okay? Therefore, in triangle PQR, जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, in triangle PQR, okay, PQ is equal to A is equal to 25 मीटर. Okay, QR is equal to, हम उसको B बोलेंगे, वो दिया है 56 मीटर. Okay, and PR which we have found out is equal to C is equal to 39 meter. Okay, now these three sides are available with us. So therefore semi perimeter is equal to, I will write it in short, S is equal to A plus B plus C upon 2 is equal to 25 plus 56 plus 39 upon 2 इज इक्वल टू, तीनों की एडिशन आती है 120 अपॉन 2 और पेरीमीटर आता है 60. राइट, हियर वी गॉट द वैल्यू ऑफ सेमी पेरीमीटर 60. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S minus C, okay, is equal to, what is the value of semi perimeter? It is 60. Then 60 minus length of first side 25, then second bracket में 60 minus length of side B 56, then third bracket 60 minus length of side C, it is 39. Okay, is equal to square root में 60 multiplied by 60 minus 25, 35, multiplied by 60 minus 56, 4, then 60 minus 39, 21. राइट, ओके, अब इनको फैक्टराइज करो. ओके, तो फैक्टराइज कैसे करना है? 60 को हम लोग करते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 5 15, 15 4 60, मल्टीप्लाइड बाय 35 को करते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4 को ऐसा ही रखते हैं, यहां पर एक 4 है. ओके, और इसको करते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, 7 को 7 है, 3 को 3 है. लेट अस राइट इट टुगेदर. ओके, 3 3 एक साथ लिखते हैं. ओके, उसको टिक मार्क भी करते हैं. देन 5 5 एक साथ लिखते हैं, हो गया 5 5. 4 4 एक साथ लिखते हैं. देन 7 7 एक साथ लिखते हैं. यहां पर कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा है. ओके, वी गॉट एग्जैक्टली टू ग्रुप्स. सो देयरफॉर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट. क्या मिलेगा स्क्वायर रूट? अब इसमें से एक एक ही लेना है. ये अगर ये स्क्वायर रूट का साइन निकालना है हमें, तो इसमें से एक एक ही लेना है. 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 7. ओके,
इज इक्वल टू इसका आंसर आता है 420. ओके, यूनिट है उसका स्क्वायर मीटर. करेक्ट. सो देयरफॉर एरिया, अब क्वाड्रिलेटरल का, हमें तो ये सिर्फ ट्राइंगल का मिला है, हमें क्वाड्रिलेटरल का चाहिए. क्वाड्रिलेटरल PQRS. ओके, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहला PSR प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल के एरिया का एडिशन. तो पहले ट्राइंगल का एरिया मिला था 270, दूसरे का मिला है 420. ओके, दोनों का एडिशन करके मिलता है आंसर 690 स्क्वायर मीटर. ओके, सो फाइनल आंसर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS is equal to 690 square meter. Okay, here this is our final answer. Let us move to example number 3. Example number 3. Some measures are given in the adjacent figure, in this figure. Then find the area of quadrilateral ABCD. ABCD. ABCD 1 2 3 4 चार साइड. ओके, फिगर समझने में जा रहा थोड़ा सा. देखो, दिस इज फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड. हाँ, क्वाड्रिलेटरल इट इज. सो क्वाड्रिलेटरल ABCD. ओके, पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑब्जर्व द फिगर. ओके, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. सो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया मिलेगा. ओके, दिस ट्राइंगल ऑल्सो वी कैन यूज द फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. देखो, बेस की लेंथ दी है, हाइट दी है, सिंपली बस दोनों ट्राइंगल का एरिया सिंपली निकलेगा. यहां पर हेरोन्स फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, आई थिंक दैट. ओके, लेट अस कैलकुलेट. ओके, नाउ क्वाड्रिलेटरल वी कैन शो दिस वे. ओके, दिस इज पॉइंट A, दिस एंगल इज शोन 90 डिग्री. ओके, this vertex is B, this vertex is C, this vertex is D. Okay, now we can understand it. Okay, this is also given 90 degree. Okay, length of this side is given 40 meter, this is given 9 meter. Okay, this total distance yahan se yahan tak it is given 60 meter, then this is given 13 meter. Okay, now see here we can use 1/2 into base into height. तो ट्राइंगल DBC का मिल जाएगा. यहां पर भी 1/2 into बेस इंटू हाइट. ओके, इसको बेस कंसीडर करो, इसको हाइट कंसीडर करो, इसका भी मिलेगा. ओके, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा लेना है पहले, ABD. ADB बोलो, ABD बोलो, कैसे भी बोलो. ओके, इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, इज इक्वल टू 1/2 इंटू व्हाट इज बेस, AD, लेंथ ऑफ AD मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ AB. राइट, इज इक्वल टू 1/2 इंटू व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD, इट इज 9 multiplied by AD, it is 40. It is given here. Okay, 2 1s are 2, 2 20s are, is equal to 9 multiplied by 20 is equal to 180 square. What is given, meter. Unit is given in meter, square meter. ये हो गया पहले ट्राइंगल. ओके, इसका 180 square meter area. Okay, now we have to think of this triangle. Okay, इसको भी 1/2 into base into height. Okay, what is the name of triangle, BDC. Okay, so therefore area of triangle BDC is equal to 1/2 into base into height. Okay, is equal to 1/2 into base means length of DC multiplied by length, height is length of BT. ओके, यहां पर हम लोग
ये लेटर देना भूल गए थे, टी इट इज। ओके, ठीक है, बीट is equal to 1/2 into what is the length of DC? It is 60 meter multiplied by BT is given 13 meter. Okay, 2 1s are 2, 2 30s are is equal to 30 multiplied by 13 is equal to 390 square meter. Okay, therefore, अब total area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle, कौन सा पहले, ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इज इक्वल टू 180 प्लस 390 इज इक्वल टू, दोनों की एडिशन कितनी आती है, 570 स्क्वायर मीटर। राइट, सो फाइनल आंसर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to 570 square meter. Correct? This is our final answer. Okay, here our practice set number 15.4 gets over. Okay, I will come back with the new video. Thank you.